جی عزیزو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر شرون شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پھر سے سیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم عہد عتیق میں سے امثال کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ عزیزو، امثال کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ امثال کی کتاب جو ہے یہ دراصل تربیت کا سبق دیتی ہے۔ یہ انسانی زندگی کی تمام ان عادات کو، اس کی حرکات کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے اگر تربیت پاتا ہے تو کس طرح سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ یہاں پر 22ویں اور 23ویں آیت جو ہے وہ جب تلاوت کی گئی ہے، اس میں لفظ شریر پہلا استعمال ہوا ہے، اور یہ جو لفظ شریر ہے اس کا مطلب ہے شرارت کرنے والا، گناہ کرنے والا، خدا کے حضور جو ہے وہ گناہ کرنے والا، اس کی نافرمانی کرنے والا۔ شرارت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ گناہ گار انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، وہ بار جو ہے جس جگہ جائے گا وہ گناہ ہی کرے گا، اور یہ شریر کی علامت ہے کہ وہ گناہ ہی کرے گا۔ اور آج ہم خداوند کی زندہ کلام میں سے لفظ شریر کے بارے میں سیکھیں گے کہ شریر کیا کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس لیے اسے جو شریر کا نام دیا گیا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنی گناہوں کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ عزیزو یاد رکھیے، کسی عالم کا قول ہے کہ اگر کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کی نوجوان نسل کو فحاشی میں ڈال دو۔ یہ بڑا مشہور قول ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو اس کی نوجوان جو نسل ہے اس کو فحاشی میں ڈال دو۔ یاد رکھیے، آج اسی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ بدکاری میں ڈالی گئی ہے اور زندگی اپنی کو برباد کر رہی ہے۔ دیکھیے، آج جو وقت چل رہا ہے اس وقت میں ایک نوجوان کو اپنی زندگی کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اکثر اوقات میں سنتا ہوں، کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ 18 سال کی زندگی نے تھکا کر رکھ دیا ہے۔ یہ 18 سال کی زندگی جو ہے یہ نوجوانی کی زندگی ہے، اور یاد رکھیے ایک بچے کی پہلی دستگاہ جو ہے وہ اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک نوجوان کی زندگی جو ہے اس کی تربیت جو ہے اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر اس کے گھر کے لوگ اس کی تربیت نہ کریں، اگر اس کے گھر کے لوگ اسے ہر اس برے کام سے جو وہ کرتا ہے اسے نہ ٹوکیں،
अगर वो करता जाए तो आइंदा आने वाली जिंदगी में वो इतना बड़ा गुनाह करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा जिससे सबसे बढ़कर वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा और इसके बाद वो अपने खानदान को बर्बाद करेगा। याद रखिए जीजो, कोई भी इंसान जो है जब खुदा के हुजूर जाता है तो खुदा हमेशा, पंजाबी में कहते हैं सुचल बंदा, खुदा हमेशा सुचल इंसान चाहता है जो तमाम तरह की बदकारी से पाक हो, सिर्फ उसकी तरफ फोकस हो। याद रखिए, ऐसे बहुत से ईमानदार लोग हैं, ऐसे बहुत से पासबान लोग हैं जिन्होंने जब जब अपनी जिंदगियां खुदा को दी हैं, जिनमें बदकारी नहीं है, जिनमें कोई भी गलत बात नहीं है, आप देख लीजिए कि खुदा ने उनको कितना सरफराज किया है। इसमें आम मसीही भी आ जाते हैं। ये नहीं है कि पासबानों की बात कर रहा हूं, इसमें मैं नौजवान जिंदगियों की भी बात करता हूं। अगर नौजवान जिंदगी भी खुदा के पास आती है और उसके अंदर तमाम तरह की बुरी हरकतें नहीं हैं जो इस दुनिया में इंसान जो है या एक नौजवान जिंदगी जो है वो अडॉप्ट करती है, तो वो खुदा के हुजूर जो है वो मुबारक ठहरेगा। लेकिन अगर आज जिस मजमून पर हम बात कर रहे हैं, शरीर पर, अगर वो इन तमाम चीजों को लेता है और करता है, उन हरकत को अपनाता है, तो वो शरीर ठहरता है। लिखा है शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी। देखें, कोई भी इंसान जब गुनाह करता है और बीमारी में डाल जाता है, मुश्किलात में, परेशानी में आ जाता है, तो याद रखिए कि उसकी बदकारी, उसकी गुनाह की सजा की वजह से ही वो पकड़ा गया है। ये नहीं है कि कोई इंसान आया और उसने आकर उसे सदा लगाई और वो गुनाह में रागिब हो गया। नो, ये इंसान की खसलत है। जब जब वो अपनी जिंदगी को पाक नहीं करेगा, वो गुनाह की तरफ ही रागिब होगा। इंसान की जिंदगी में गुनाह शामिल है, लेकिन उससे बचना कैसे है? खुदा का कलाम फरमाता है, क्या फरमाता है कि ऐसे लोग जो पाक दिल हैं, ऐसे लोग जो पाक दिल हैं, उनको खुदा पसंद करता है। लिखा है उसकी बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। इंसान के गुनाह जब बढ़ जाते हैं, जब बदकारी का वजन ज्यादा हो जाता है, तो जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है, इंसान गिरना शुरू हो जाता है। एक राइटर हैं जॉन चार्ल्स रायल, बड़ी ही खूबसूरत कोटेशन बयान किया उन्होंने। वो कहते हैं कि जब इंसान छोटी छोटी बातों को हकीर जानना शुरू कर देता है, तो वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। क्या ही खूबसूरत बात है कि इंसान धीरे धीरे से गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले उसके अल्फाज क्या है? कहता है कि जो इंसान छोटी छोटी बातों को हकीर जानना शुरू कर देता है, हमारे छोटे छोटे गुनाह हमें खुदा से दूर कर देते हैं। आज यही दौर है जिसमें हम देखते हैं कि एक नौजवान जिंदगी जो है वो खुदा से इसीलिए दूर हो चुकी है, इसलिए उसके अंदर जो है वो नेकी और पाकीज़गी का जज्बा नहीं है। वो जब जब खुदा के कलाम को सुनती है, वो उससे दूर भागती है। ऐसे बहुत से नौजवान मैं खुद भी देख चुका हूं, जिन्होंने जब भी खुदा के कलाम की बात होती है या प्रोसेस होती है या कोई भी इस तरह का टाइम होता है, तो वो अपने आप को उस रास्ते से निकालते हैं, उस जगह से निकाल ले जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वही नौजवान जिंदगियां अगर उनको घर से तरबियत दी हो, जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में या जिस यूनिवर्सिटी में वो जाते हैं वहां पर उनको तरबियत दी हो, तो वो कभी भी ऐसे रास्तों को इख्तियार ना करें जिसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है बर्बाद हो। वो खुदा के हुजूर शरीर ठहरे।
शरीर इंसान बनता ही इसलिए है कि जब वो अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करता, जब उसकी तरबियत नहीं होती है। मैंने आपके सामने कोटेशन बयान की है जॉन चार्ल्स राइस की। जॉन चार्ल्स राइस बड़े नामवर राइटर हैं, लेकिन देखें कि जो छोटी छोटी बातों को हकीर जानना शुरू कर देता है। आज नौजवान जिंदगियां इसीलिए तो खुदा से दूर हैं कि उन्होंने छोटी छोटी बातों को हकीर जानना शुरू कर दिया है। आगे लिखा है, और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। अपने ही गुनाहों की वजह से जकड़े जाते हैं। बीमारियां जो आती हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि अपने गुनाहों की वजह से जकड़े जाते हैं गुनाहों की रस्सियों में। याद रखिए, उनमें से निकालने वाला एक ही है, वो मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। सिर्फ उसके पास आना है। वो आपको ऐसा रूह अता करेगा जो तमाम गुनाहों से आपको आजाद करेगा, आपको छुटकारा देगा। फिर आप शरीर नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो खुदा के हुजूर रास्तबाज इंसान, अच्छे इंसान हो, नेक इंसान हो। आगे 23वीं आयत में लिखा है, वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा। क्या ही खूबसूरत अल्फाज हैं कि वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा। इसका मतलब है कि जिसकी तरबियत नहीं होती है वो शरीर है, वो गुनाहगार है। वो जाहिर बात है कि अगर उसकी तरबियत नहीं हुई तो वो ऐसी हरकत करेगा जो खुदा के हुजूर नामंजूर हो, जो उसे अच्छी ना लगे। इसका मतलब है वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा। इसका मतलब है कि शरीर जब जब गुनाह करेगा वो खुदा के हुजूर गुनाहगार ठहरेगा, और एक वक्त आएगा कि जब उसकी काउंसलिंग नहीं हुई है, जब उसे समझाया नहीं गया है, तो एक वक्त आएगा कि उन्हीं गुनाहों और उन्हीं बदकारियों की वजह से उसकी मौत हो जाएगी, वो मर जाएगा। लिखा है, और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। वो बार अपने गुनाह पर जब डटा रहेगा, अपनी बातों पर जब डटा रहेगा। देखें, याद रखें, जो ऐसे इंसान होते हैं वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम दुरुस्त कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम दुरुस्त कर रहे हैं। उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप उनकी काउंसलिंग करने के लिए जाएं तो वो आपको ही पकड़कर मारना शुरू कर देंगे, आपको ही दुदकारना शुरू कर देंगे। इसमें बहुत सारे मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, खादमीन भी हैं जिन्होंने कई बार ऐसी मुनादी करना शुरू की तो लोग उनकी बात सुनना शुरू नहीं करते। मैं खुद, मेरा ऐसा तजर्बा हुआ। मैं नौजवान जिंदगियों के पास गया, मैं चर्च जाने लगा था प्रे करने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि आए हम प्रे करें, हम चर्च में जा रहे हैं तो हम आपको भी दावत दे रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें, हम प्रे करने के लिए जाएं। तो उन्होंने कहा जी आप जाएं, हम थोड़ी देर तक आते हैं। हम प्रे करने लग पड़े और वो नहीं आए, वो हमारे पीछे नहीं आए, उन्होंने हमारी बात को रद्द किया। ये है वो तरबियत जिसमें हम देखते हैं कि नौजवान जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, खुदा के कलाम से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। इसलिए आज का पैगाम क्या है कि हमें नौजवान जिंदगियों को खुदा के करीब लाना है। हमें उन जिंदगियों को खुदा के हुजूर लाकर उन्हें ऐसे इंसान बनाना है जो खुदा को पसंद आए, वो शरीर न ठहरे, वो अपनी सख्त हमाकत की वजह से गुमराह ना हो जाएं। और याद रखिए, जब वो गुमराह होंगे, और सबसे बड़ी जो कमी है, अगर वो उनकी तरबियत नहीं हुई है तो इस वजह से वो गुमराह होंगे, उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनकी जिंदगियों को कोई संवारने वाला नहीं है। क्यों वो जकड़े गए हैं? इसी वजह से आज चैलेंज ये है, अगर आज आप इस पैगाम को सुन रहे हैं तो आपके लिए इस बात का चैलेंज है, अगर आप
آج خدا کے حضور آنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے حضور لانے کے لیے خود کو پاک کریں، اپنے دل میں ان تمام گناہوں کو نکال دیں، آزاد ہو جائیں، شریر نہ ٹھہرے۔ اور یاد رکھیے خدا کو پاک لوگ پسند ہیں، پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ اگر آپ ایسا کام نہیں کریں گے تو خدا کے کلام کے مطابق آپ شریر ٹھہریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شریر نہ ٹھہریں، آپ بدی کی گمراہی میں نہ چھائیں، آپ اپنی ہی حماقت میں نہ پھنس جائیں، تو پھر ضروری ہے، کہتا ہے کہ پھر کیا ہے کہ پھر تم برباد ہو جاؤ گے، تو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کو دیں۔ یہ پیغام سپیشلی میرا نوجوان زندگیوں کے لیے ہے کہ نوجوان جو زندگیاں خدا سے دور ہیں، ضرور اس کلام کو سنیے، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، چھوڑ دے دنیا کی رنگ رلیوں کو، عیاشیوں کو۔ کچھ نہیں ہے ان میں، وہ بربادی ہے، لیکن خدا کے کلام میں زندگی ہے، وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت